We are live. Okay, let's waiting for a few people to join. Okay. Uh, Hello everyone. Welcome back to another one of our weekly career classes. My name is Aditi and I'll be hosting today's live session. Thank you all for joining in. And today we are going to cover a very exciting topic, which I'm going to be telling you in a while. Let's wait for a few more people to join in. Okay. So for today's weekly career class, we will be exploring career as a content writer, as you can see on your screen. The reason for choosing to discuss this topic was because we had posted a career intro video on YouTube, and the video was about career as a copywriter. And most of the comments that we got from students, they were majorly asking if getting into getting into a career as a writer or a content writer or copywriter is even a good idea. Just because AI जिस जब से एआई आया है तब से many students have this question कि इस करियर में घुसना भी एक अच्छा आइडिया है कि नहीं, because will AI take over my job, will AI take over all the jobs of every sector. So we thought, let's solve this question for everyone, and to do that we have joining us today as a speaker Miss Muskan. Welcome to the live, Muskan. Thank you so much. Okay, so for before, let me just introduce Muskan. Muskan is a professional from a journalism background. She has a vast knowledge of new media, public relations, content, social media, marketing, and communication. She has worked at Fashion TV as an intern, at Impact Guru as a full-time content and PR executive, and currently working at iDreamCareer as a technical and copywriter. So we chose Muskan because she had, knowledge of different sectors. She has done technical writing, she knows copywriting, she knows content writing. So we thought that to cover such a topic, we should get somebody who has knowledge and guide students according to that. So I think, Muskan, before we start with everything and you explaining what we're going to discuss, can you please tell us about your journey to start with? Like, how did you get into this writing career? Sure, Aditi. Sure. Thank you so much. My journey actually started uh, 2003 with my graduation. After completing my graduation, I shifted to Mumbai for my first internship, which was with Fashion TV. तो शिफ्टिंग टू इम्पैक्ट करूँ मैंने फैशन सीखी में हार्डकोर जर्नलिज्म बैकग्राउंड में काम किया सो so after working in fashion TV the hardcore journalist मुझे फील हुआ कि writing is something that gives me uh, some place to be more creative and मुझे freedom है like writing में you get the freedom to talk anything you want and in a very creative way so जैसे बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए कितना भी बड़ा आसमान दे दो उनके लिए कम पड़ता है सो राइटिंग कंटेंट राइटिंग इज जस्ट सेम इट्स अ ह्यूज स्काई टू फ्लाई इन तो मैंने वहां से अपना कंटेंट राइटिंग करियर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर फुल टाइम जर्नी स्टार्ट हुआ इम्पैक्ट गुरु से तो इम्पैक्ट गुरु में मैंने ऑलमोस्ट एक साल अप्रॉक्स काम किया तो एज अ कंटेंट राइटर पीआर टीम तो दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी वहां से मुझे एक्चुअली पता चला कि ठीक है कंटेंट राइटिंग इज समथिंग दैट आई एंजॉय मोर एंड मुझे क्रिएटिव एरियाज में काम करना ज्यादा पसंद आता है
सो इम्पैक्ट गुरु वाज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे ये रियलाइज हुआ। फिर जब मैं कंटेंट राइटिंग में घुसी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे इसके तो बहुत सारे स्टेम्स हैं। द कंटेंट राइटिंग इज नॉट होल, उसके बहुत सारे स्टेम्स हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब आप बहुत अलग अलग एरियाज में प्ले कर सकते हो एज अ कंटेंट राइटर। तो फिर वहां से मैंने वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा इसमें तो और भी सारे सेक्टर्स हैं, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, तो फिर वहां से आई गेट दिस क्यूरियोसिटी कि चलो मुझे भी ट्राई करना है कि मैं कौन से सेक्टर के लिए ज्यादा अच्छी बनूं। तो फिर मैंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करना चालू किया, स्टार्ट किया, एंड देन आई गॉट टू नो दैट टेक्निकल राइटिंग इज समथिंग दैट आई एंजॉय। फिर जब मैं काम करने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा कि ठीक है, बीइंग अ वर्सटाइल मेंबर इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये आपकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बूस्ट करता है। तो फिर वहां से मैंने कंटेंट राइटिंग इज समथिंग यू कैन नेवर एंड, आपकी लर्निंग खत्म ही नहीं होती, यू ऑलवेज गेट समथिंग न्यू व्हाइल वर्किंग। तो यहाँ पे मैंने अपना करियर एक्सप्लोर किया एज अ स्टार्ट मैंने टेक्निकल राइटर से किया था, बट वर्क किया था पोटेंशियल राइट नाउ, आई एम लविंग। Muskan, can you hear me? Mm, Hello. Am I audible, Muskan? प्लस अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर रियली अपडेट राइट नाउ कि कंटेंट राइटिंग में क्या फ्यूचर हो सकता है। दैट टू एआई भी आ गया है साथ में हमारे, people are getting really afraid of that, उनका competition हो सकता है, AI can replace them as a writer, क्योंकि चैट जीपीटी एंड ये सब एआई टूल्स हैं, those are like really intimidating for students nowadays. So आज हम वही बात करेंगे, let's get clear on this facts today. So yes, start करते हैं। Yes. Muskan, am I audible to you? Yes, yes, clearly. Okay, great. Okay, so we have, we have talked about your journey, and then now we can discuss what, we'll be talking about in the presentation. बहुत ही exciting. We'll have a conversation and we'll talk कि, क्या क्या career opportunities available, and Muskan, I'll, give it to you to explain it. Yes. कि बेसिक ही लोगों को नहीं याद वो क्लियर वो मैच नहीं कर पाएंगे एआई। वो एआई स्टूडेंट्स आर टेकिंग एआई एज अ कंपटीशन। तो लेट्स क्लियर दिस फैक्ट टुडे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं एज अ कंटेंट राइटर। तो जब हम लोग बात करते हैं opportunities की, so as I told you that content writing is not limited to one stream or one area. It's a uh, very large uh, ground to play actually. So उसके बहुत सारे stems हैं। We have some career roles like copywriter, content strategist,
then technical writer, social media creator, SEO specialist, editor, marketer, and freelance. So ये सारे के सारे roles एक दूसरे से काफी different हैं. इसमें सिमिलैरिटी बस ये है कि हाँ आपको क्रिएटिव राइटर होना है, बट तो सारे एक्चुअली सारे स्ट्रीम्स अलग भी हैं और सिमिलर भी हैं. तो दिस इज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स. तो ये उनको जब तक वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे इंडस्ट्री में, अपना अपने आप को ट्राई नहीं करेंगे कि हाँ मैं ये तो ट्राई करके. So without exploring your skills, you cannot know which role will suit you more. And ऐसा भी नहीं है कि आप एक रोल तक लिमिटेड आपको रहना है कि हाँ आप कॉपी राइटिंग चूज कर रहे तो आपको कॉपी राइटिंग ही करनी. You can be as creative and as versatile as you want in content writing. तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज हो गई. तो आप जितना भी एक्सप्लोर करोगे आपको कंटेंट राइटिंग में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मिल जाएंगे. Then next point, I think skills required. Uh, Hello, are you speaking something? You're mute, Aditi. Am I audible? You're on mute. Am I audible? Hello, Muskan, can you hear me? Am I audible, Aditi? Yes, now you're audible. There was some audio issue, I think, and the audience was able to hear you. ये वाला section से we can start again. Am I audible now? I think there's a connectivity problem. Am I audible right now? You're audible, but your voice is lagging. We can start once again and see how it is. Let me. So, was talking about career opportunities. Start with career opportunities. So, as I mentioned, content writing is not limited to one opportunity or one stream. It's a vast industry work. So content writing has a lot of stems you can explore and you can see which role suits you better. बट इसमें भी आप एक रोल तक लिमिटेड. दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप एक रोल पे लिमिटेड रह जाओ या एक रोल ही आप ट्राई करो. You can be as creative and as versatile you want. There is no limit. So, if we will talk about roles that content writing offers, so these roles are copywriter, content strategist, and freelance writer. So these are some of roles. तो आप इसमें से कोई भी रोल आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड वर्सेटाइल भी हो सकता है. तो जितना आपके पास जितने स्किल्स होंगे, आप क्रिएटिव होंगे, आप इतने सारे रोल्स Muskan, can you speak a little louder? थोड़ा ना धीरे आवाज आ रही है आपकी. थोड़ा सा आप तेज बोलोगे तो आई थिंक audio will be better for the audience. कैन यू हियर मी नाउ? I can hear you, but your voice is a little lower. तो आप थोड़ा सा तेज मतलब वॉल्यूम में बोलोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर आवाज आएगी आपकी, क्लियर आएगी सबको. Okay, so I'll हाँ, keep this is my better. mic nearby my mouth. Yeah, this is better. Yeah. So should we start with career opportunities again? Yes. I think we can move on to the next slide where we are talking about career opportunities. Okay, I'll give a small detail. Yeah. So as I mentioned, career opportunities in content writing is very versatile and a very vast industry to work with.
So it's not limited to one role. We can be as versatile we want and as creative we want to be. We can be technical writer and a copywriter together, just like I'm working right now. So yeah, you can explore as much as roles you want. It's depends on your creativity. Next, I think we'll go for skills required for content writing. So again, I will say for content writing, there's no as such skills that is limited to this role. You have to set your limits to unlimited skies. So you cannot be limited when you are being creative. Creativity is something that starts when you start exploring the unlimited things. So yeah. So for an example, you have to be very proficient writing skills. You have to be very proficient when you write. You have to be creative, uh, and your content should be very up to date. So you will have to be research expert. Then you need some strong communication skills because content writing is not something that you're just writing. You are actually talking to a very huge mass. So your writing is going in public. People are reading you. People are going to read your thoughts. So they must know what are the things you want to convey to them. So you need to be very uh, strong when it comes to communication skills. Then there are some challenges. So the challenge we are going to target today is fact about AI versus content writing. So people think today students are very afraid that AI is going to replace them in careers like content writing. So I would say yes, AI has come. We cannot change the fact that AI is not there. This is true that AI is there. But artificial intelligence is something that is going to help us to boost our productivity. AI cannot work on itself. It needs some expert. It needs some person, some human to guide them, to lead them to work. तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी खुद से कंटेंट बना लेगा एंड खुद से फाइनल कर देगा कि ठीक है दिस कंटेंट इज परफेक्ट दिस कंटेंट शुड गो लाइक they need some human help. Okay, am I audible? Yes, yes. So AI हमारे AI एक्चुअली हमारे रोल को हमारे जॉब को इजी करने के लिए आया है ना कि हमें रिप्लेस करने के लिए. So this is a complete myth if we are thinking AI can replace human aid. So for now, AI cannot replace us, and it needs our guidance to work properly. AI is actually an aid to our job. It's not some challenge or not some threat to our job. तो हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. हमने बात किया करियर अपॉर्चुनिटीज पे. So there are some roles that we can explore as a content writer, and explore करने के बाद we can decide what roles suit us better. So we can say copywriting is something. I'm a copywriter. I work as a copywriter, and I can tell you this is a very creative role. Then content strategist, technical writer. Technical writer right now I'm also working as a technical writer. It is basically uh, you have to write about technologies. You have to be very knowledgeable about technologies, how the apps are working, how some new software is working, which is coming in the market. Then social media content creator. So I think I missed the content strategist. So content strategist is someone who strategize the content, like how the content will go,
in the market, and which content will make impact. So content strategy is someone who plans what content will go and what content we are going to write. Then social media content creator, there are today social media is some platform, like some very good platform. सोशल मीडिया आजकल सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए ऑडियंस तक। तो वहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। सो टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक तो नहीं है अभी इंडिया में, बस रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं। फिर एसईओ स्पेशलिस्ट हो गया, तो दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमिज्म स्पेशलिस्ट। तो ये इनका जॉब बेसिकली होता है कि हमारे सर्च इंजन, जब हम कोई भी अपना डाउट, कुछ भी एक मैसेज सर्च करते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी सर्च करते हैं, तो उस पे हमारा जो कंटेंट है वो टॉप पे आना चाहिए, लाइक लोगों को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलनी चाहिए। तो उनका ये काम है। प्लस एडिटर आ गए, तो अब कंटेंट, द कंटेंट वी आर राइटिंग शुड गो टू सम लेवल जहाँ पे उसको रिफाइन करते हैं, चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि कोई मिस्टेक्स ना जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो हमारा मैसेज जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। So that is editor's job to delivers deliver some fine writing. फिर उसके बाद कंटेंट मार्केटर है। कभी कभी हमारे कंटेंट मार्केटिंग के भी हेल्प में आते हैं। हमारी कोई ब्रांड है, हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसको सेल करना, तो ये सेल्स पर्पज से भी राइटिंग करते हैं। फिर फ्रीलांस राइटर है, जो अगेन वेरी अनलिमिटेड एरिया, दिस इज फ्रीलांस राइटिंग, किसी भी एरिया में राइटिंग कर सकते हैं। तो यस, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, देन स्किल्स आ गई। स्किल्स, हमारे पास कुछ बेसिक स्किल्स हैं एज अ कंटेंट राइटर। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बेसिक स्किल्स हैं, जैसे एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स हो गई। दिस इज आई थिंक द मोस्ट प्राइमरी स्किल वी नीड एज अ कंटेंट राइटर। हमारे पास अपने आइडियाज को, अपने मैसेज को अच्छे से लिख पाना, अच्छे से पेपर में निकाल पाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। प्लस क्रिएटिविटी हो गई। आई थिंक विदाउट क्रिएटिविटी नो राइटर इज अ राइटर। तो लिखने को तो कोई कुछ भी लिख सकता है, बट योर क्रिएटिविटी मैटर्स, कि आप लिख क्या रहे हो और आप उसको कैसे लिख रहे हो। सो एक बात होती है जो हम एक तरीके से बोलते हैं, एंड देन सेम बात हम उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, विच इज मोर अट्रैक्टिव, एंड जो बहुत ज्यादा इंगेजिंग लगती है, जो लोग सुनने के लिए, जो लोग सुनते हैं एक्चुअली। तो वहां पे क्रिएटिविटी आती है हमारी, कि हम अपनी बात को किस वे में रख रहे हैं। देन रिसर्च प्रोफिशिएंसी हो गई। तो बिना रिसर्च के तो आई थिंक कोई भी कंटेंट अप टू डेट नहीं रहने वाला है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल भी नहीं। तो हमारा कंटेंट जब तक अप टू डेट नहीं होगा, हम तब तक अपने रियल ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो you have to be very informative when you're going to write something, because writing has a lot of power, and writing should not uh, convey some wrong or confused message to the audience. फिर एसईओ नॉलेज होना चाहिए। हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं आजकल, कौन सी बातें ट्रेंडी चल रही हैं, जो लोग बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अभी हमने ये टॉपिक पिक किया है कि कंटेंट राइटर्स डरते हैं कि एआई उनका जॉब नहीं रिप्लेस कर देगा। तो दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या बातें चल रही है सोशल मीडिया में, क्या ज्यादा ट्रेंडी है, तो हम उसके बारे में बात करें, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। फिर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग, it is actually not important for career writers, but every job, I think this is very important for every role, to be very adaptive,
क्योंकि आगे क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, वी नेवर नो. सो वी हैव टू बी वेरी रेडी टू कोई भी इमरजेंसी या कोई भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए. ये हमारा लाइफ स्किल भी होना चाहिए एक्चुअली, नॉट जस्ट फॉर कंटेंट राइटिंग, बट ये लाइफ स्किल भी होना चाहिए. तो कंटेंट राइटिंग में इसका ये बेनिफिट रहता है कि हम हमेशा रेडी रहते हैं. तो कुछ नया, कुछ फैक्ट, कुछ नई चीजें हो गई तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए उसको लिखने के लिए. देन अटेंशन टू डिटेल. अब हमारा कंटेंट जो जा रहा है पब्लिक में, दैट शुड बी वेरी रिफाइंड एज आई मेंशन. That should not be confusing, or that should not contain a lot of mistakes जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाए. राइटर का मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि उसकी बातें उसके ऑडियंस तक क्लियरली पहुंच जाए. तो उसके लिए डिटेल्स पे बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है. देन टाइम मैनेजमेंट. यू नीड टू बी वेरी पंक्चुअल. इफ समथिंग इज हैपनिंग टुडे यू कैन नॉट पोस्ट इट टुमारो, वरना उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. तो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्युनिकेशन स्किल अगेन, आई एम सेइंग कि जब कंटेंट राइटर अपना कंटेंट लिखता है देन ही इज नॉट टॉकिंग टू 2-3 पीपल, और एक इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है. दिस इज अ मास कम्युनिकेशन. यू आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, अ बिग पॉपुलेशन हियर. So you have to be very clear about your message, and your communication skills should be very uh, attractive, I would say, very interactive. तो क्योंकि आजकल लाइक पीपल, हमारे एज के जो पीपल है, मैं हूँ, अदिति है, हम लोग बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. एक्चुअली थिंग्स गेट बोरिंग. Right, right. And I think content creation या content writer, especially writing वाला चीज, even I have also, as being as a social media person, I've also done some writing क्योंकि वो भी एक जरूरी पार्ट होता है. तो एग्जैक्टली. आई हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट कि एक पॉइंट ऐसा आता है वेयर यू लाइक कि अब थोड़ा कुछ नया चाहिए, राइट? बिकॉज राइटिंग में थोड़ा सा मोनोटनी आ जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एग्जैक्टली. टाइम. सो फिर उस चीज के लिए क्या, मतलब व्हाट्स द, मतलब राइटिंग में ऑलरेडी घुस चुके हो तो अब क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा यस, तो इंटरेस्टिंग आपको बना रहे? हमेशा कुछ ना कुछ नया डिलीवर करना है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डिलीवर करना है. अपनी ऑडियंस को सुनना है, जानना है कि वो क्या सुनना चाहते हैं, या वो किस चीज के लिए परेशान है, या उनको क्या प्रॉब्लम है. तो जब आप उनको वही डिलीवर करोगे जो उनकी एग्जैक्ट कंफ्यूजन है, तो आपको एक अच्छा एंगेजमेंट भी मिलेगा और आप अपने ऑडियंस के लिए हेल्पफुल भी हो पाओगे. तो उसके लिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. फिर अब बात आती है एआई वर्सेस कंटेंट राइटर्स, जो कि हमारा मेन मुद्दा है आज का. तो कैन एआई रिप्लेस कंटेंट राइटर्स? आई वुड से नो, इट कैन नॉट. सो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है. कंटेंट राइटर बहुत क्रिएटिव और बहुत बड़ा स्ट्रीम है जिसमें एआई हमारा एक छोटा सा हेल्पर है. जैसे नोबिता के लिए डोरेमोन था, तो डोरेमोन उसकी हेल्प करता था उसको सक्सेस होने के लिए, ना कि उसको रिप्लेस कर देता था. गैजेट्स देता था. अगर अगर नोबिता के अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं तो उसमें डोरेमोन उसको सपोर्ट करता था. डोरेमोन उसको गैजेट्स देता था, उसके काम इजी कर देता था, छोटे कर देता था. तो एआई इज जस्ट लाइक डोरेमोन फॉर अस. इनफैक्ट इससे डरना तो दूर, इनफैक्ट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. वी जस्ट हैव टू लर्न कि कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है. इट कैन बूस्ट आवर प्रोडक्टिविटी बाय 10 times, आई वुड से. तो एआई को हम एज अ जियान नहीं लेते हैं, एज अ डोरेमोन लेते हैं. तो एआई हमारा दुश्मन नहीं है, एआई इज आवर हेल्पर. वो खुद से काम नहीं कर सकता है. वी नीड समवन टू गाइड इट, समवन फ्रॉम द सेम एरिया, सेम बैकग्राउंड, हु नोज द वर्क. सो अगर मुझे कोई आर्टिकल लिखना है तो मैं एआई पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ. आई नीड सम पर्सन हु कैन डिलीवर मी द कंटेंट, हु कैन चेक what the things are going in the market. ये सब this is human effort. This cannot be done by some AI or some other tools. तो इसमें डरने की बात नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. हाँ, एक बात है, AI cannot replace our jobs, but someone who knows AI
will replace our jobs. So जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, हमें भी कुछ चीजें अडाप्ट करनी पड़ती हैं. जैसे सबसे अभी मैंने स्किल बताई, अडाप्टेबिलिटी. तो एआई इज समथिंग वी नीड टू अडाप्ट एज अ राइटर्स. अब वो हमें सीखना है कि हमें कैसे उसको अपने काम में यूज करना है, दैट वी कैन boost our productivity as much as we can. So AI cannot entirely replace human content writers because humans have something that does not have, or any tool or any device does not have. That is creativity, unique creativity. Uniqueness नहीं ला पाएंगे AI और कोई भी tool जो human ला सकते हैं. So that is why human brain is considered as the सबसे sharp and सबसे smart people, like सबसे smart animals on the earth. तो ये इसमें डरने की बात नहीं है. अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि जो कंटेंट हमें नॉर्मल कंटेंट राइटर से मिलता है, जो कि एआई के साथ काम नहीं कर रहे हैं, और जो कंटेंट हमें एआई से जनरेटेड मिलता है, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है क्रिएटिविटी का कंटेंट राइटर्स के लिए. तो जो क्रिएटिविटी एक ह्यूमन ब्रेन दे सकता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स एक ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है, वो एक टूल, एक डिवाइस नहीं सोच सकता है. तो यहाँ पे लिमिटेड हो जाता है एआई का. और फिर उसके बाद एआई जो हमें प्रोवाइड करता है वो है एफिशिएंसी. अब एआई कोई भी एक बड़ा कंटेंट बहुत जल्दी लिख सकता है, बहुत छोटे टाइम. क्रिएटिविटी मिसिंग होगी, बट वो बहुत सारा काम कुछ थोड़े से टाइम में कर सकता है. बट स्टिल वी कैन नॉट डिलीवर दैट कंटेंट अहेड, because I think quality is way far, like way ahead than quantity. आप दिन में 6 आर्टिकल भेज रहे हो, बट वो आपका जो टारगेट ऑडियंस है उनको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, उनसे एंगेज ही नहीं कर पा रहा है. सो देयर इज, आई थिंक दैट इज मीनिंगलेस. इवन हम लोग भी, जब आदिति यू वर्क विथ सोशल मीडिया, अगर हम भी कोई रील बनाते हैं और वो हमारे ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पा रहे उससे, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं आता है. Am I right? एंड लाइक कंटेंट क्रिएट करना एंड ऑडियंस को दिखाने का मेन पॉइंट है कि जो हम जिस तरह से एक ह्यूमन एक पेन पॉइंट समझता है अपने ऑडियंस का, उस तरीके से एआई पेन पॉइंट को पोर्ट्रे नहीं कर सकता जिस तरीके से एक ह्यूमन कर सकता है. राइट. आई थिंक वो बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ बीइंग अ राइटर, ऑफ बीइंग अ कंटेंट राइटर. एग्जैक्टली. या अब ह्यूमन के पास फीलिंग होती है, तो एआई वो फीलिंग नहीं ला सकता है. तो दैट इज समथिंग जहाँ पे कंटेंट राइटर्स को एक पॉइंट मिल जाता है. देन फिर उसके बाद हो जाती है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सेम हमने जो बात की अभी ह्यूमैनिटी की, कि ह्यूमन के पास फीलिंग होती है, वो समझ सकते हैं कि हाँ, अगर मेरी एज का स्टूडेंट है, आई वुड से कि चलो ठीक है, कोई 19 साल 18 साल का स्टूडेंट है, उसके बारे में उसके मन में क्या प्रॉब्लम चल रही होगी. बिकॉज आई वॉज 18 और 19 कभी ना. आई वॉज ऑल्सो सम 18-19 गर्ल, worried about my career, confused, and I also didn't know what stream I have to choose or what college I need to choose. तो ये फीलिंग आई थिंक कहीं ना कहीं एआई लैक करता है. वो फीलिंग वो नहीं ला सकता है, बिकॉज एआई कभी स्कूल नहीं गया, ऑब्वियसली एआई ने कभी होमवर्क नहीं किया, तो ये फीलिंग हम ही ला सकते हैं. तो यहाँ पे भी एआई लिमिटेड है. बट इसमें एक चीज है कि एआई स्पीड प्रोवाइड करता है. अभी मैंने बताया कि जैसे वो एक बहुत बल्क में बड़ा कंटेंट बहुत जल्दी लिख सकता है, तो एआई हमको स्पीड प्रोवाइड करता है जो हेल्पफुल हो सकती है. फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अडेप्टेबिलिटी. अभी एज वी डिस्कस कि ह्यूमन लास्ट मोमेंट पे बिना किसी एक्सटर्नल डायरेक्शन के भी अपने अंदर चेंज ला सकते हैं. अगर मैंने बताया है कि ठीक है आदिति, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, तुम्हें 2 बार जंप करना है, ठीक है, या मुझे 2 बार जंप करना है, या मुझे बहुत जोर से दौड़ना है, बट मैंने देखा कि ठीक है
फ्लोर तो बहुत स्लिपरी है, अगर मैं इस पे ज्यादा जंप करूंगी या दौड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी और वीडियो खराब हो जाएगी। तो मैं उसमें अपने मन से इम्प्रोवाइज कर देती हूँ कि नहीं ठीक है, मैं दौड़ती हूँ बट मैं थोड़ा आराम से दौड़ती हूँ, कि वीडियो भी हो जाए और हमारा प्रॉब्लम भी ना आए ऐसे कुछ। बट अब यहाँ पे फिर मशीन ये चीज लैक करती है, उसके पास हमने जितनी चीजें सेव की हैं, उसको हमने जितना सिखाया है, वो बस उतना ही कर सकता है, वो बस वहीं पे लिमिटेड है, वो खुद से कोई चीज नहीं बदल सकता है लास्ट मोमेंट पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। देन एआई यहाँ पे एक क्वालिटी देता है कि डेटा ड्रिवन होता है। अब हमें कोई कंटेंट लिखने के लिए पूरा स्टडी करना पड़ेगा, पूरे सोशल मीडिया, गूगल, कोई भी अलग सर्च इंजन है, यूट्यूब वीडियो, न्यूज़, जितने प्रेस रिलीज आर्टिकल, सब पढ़ना पड़ेगा एक कंटेंट देने के। बट एआई वहां पे खुद ब खुद उसके अंदर सारे डेटा फीड होते हैं ऑलरेडी, तो वो सबसे अप टू डेट जो डेटा होता है उस पे ही काम, अगले प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है, तो दैट इज समथिंग गुड। फिर कंटेंट राइटर्स में नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी अश्योरेंस। तो मैंने जैसे पहले हम लोगों ने बात की थी इस बारे में कि ह्यूमन कैन प्रोवाइड क्वालिटी एंड एआई कैन प्रोवाइड क्वांटिटी। अब क्वालिटी में क्या आता है कि ह्यूमन के लिखे कंटेंट में इमोशन होता है, लव होता है, एंगर होता है, हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, सरकाजम होता है, फन होता है। वो एआई कंटेंट में नहीं आ सकता है, वो हमें उन्हें डायरेक्शन देना पड़ेगा, बिना डायरेक्शन के वो मिक्स इमोशन या अलग अलग इमोशंस पे कंटेंट नहीं बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम उनको बोलते नहीं है। तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन आ गई। अब एआई में क्या है, कंसिस्टेंसी होती है। क्यों? अब एक ह्यूमन ब्रेन को काम कोई भी डिलीवर करने में बहुत क्रिएटिविटी, दिमाग लगता है, वो ट्राई करता है कि हम अपना बेस्ट वर्जन दें, सारे एस्पेक्ट्स को चेक करके। बट एआई का काम है बस काम देना है, बस मुझे डिलीवर करना है, मुझे मेरे सिस्टम में ये फीड है कि मुझे एवरी वीक मंडे को ये आर्टिकल भेजना है, तो मैं भेज दूंगा। सो दिस इज गुड कि वहाँ एआई के पास कंसिस्टेंसी आती है, जहाँ ह्यूमन को थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी कोई आर्टिकल 2 दिन में रेडी हो जाता है, और कभी कभी कोई आर्टिकल को रेडी करने में 1 महीने लग जाता है। कभी कभी हम कोई शॉर्ट वीडियो आधे घंटे में बना लेते हैं, और कभी कभी पूरा दिन चला जाता है, तो वहां पे एक बेनिफिट आ जाता है। फिर लास्ट पॉइंट अपना आ जाता है ऑडियंस एंगेजमेंट। जैसे मैंने बोला कि हम जितना कनेक्ट करेंगे अपने ऑडियंस से, जितना इमोशनली उनसे इन्वॉल्व होंगे, तो उतना ही ज्यादा वो हमारे कंटेंट से भी एंगेज होंगे, उतना ही ज्यादा उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये कंटेंट, दिस इज समथिंग आई एम आस्किंग फॉर एंड दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग। ठीक है, दिस आर्टिकल इज गोइंग टू सॉल्व माय कंफ्यूजन, दिस पीस कैन हेल्प मी टू चूज बेटर कॉलेज फॉर मी। और एआई में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, उसको जितना हमने उसको बोला कि मुझे इतना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसने उतना ही दिया। वो अपने से ऑडियंस एंगेजमेंट के बारे में सोच नहीं सकता है, एज लॉन्ग एज हम उनको कोई कीवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इस पार्ट में हमने देखा कि कंटेंट राइटर्स की क्या बेनिफिट्स हैं, जो ह्यूमन कंटेंट राइटर्स हैं, प्लस क्या लिमिटेशंस आ रही हैं। और हमने देखा एआई जनरेटेड कंटेंट में क्या क्वालिटीज हैं और क्या लिमिटेशंस आ रही हैं। Muskan, I think I would like to add one more point श्योर कि श्योर। एक तो ये वाली चीज भी होती है कि इफ यू आर वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी यस एंड यस उससे रिलेटेड ही ऑब्वियसली सब कंटेंट लिखते हैं, लाइक यू आल्सो, आप iDreamCareer करिए के लिए अगर कुछ लिख रहे हो, या जो भी कंपनी में आप काम करते हो उसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, तो ओनली यू विल बी एबल टू नो कि एग्जैक्टली क्या चीज को एज अ पॉइंट लेके उस पे कंटेंट बनाना है, कि आपकी ऑडियंस जानना क्या चाहती है उसके ऊपर बनाना है। जबकि एआई ऑन द अदर हैंड वुड नॉट नो दैट अंटिल यू टेल देम, तो वो अपने आप को एग्जैक्टली बताएगा। एग्जैक्ट ट्रू यस, दैट वाज माय पॉइंट एग्जैक्टली। उनको बताना पड़ता है कि ठीक है, हमें ये चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। कभी कभी बताने में भी प्रॉब्लम हो जाती है उनको, कभी कभी हमारा मैसेज क्लियर नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज द थिंग्स वी आर थिंकिंग अपने अंदर, दैट कैन नॉट
understood by an AI tool. वो हमारा दिमाग नहीं देख सकते हैं. The things we are telling them to do, the only thing they know. That is the only thing they know. Right. तो Absolutely. ये this is very clear point. अब हम लोग देखते हैं, हमने दोनों की क्वालिटीज और दोनों के चैलेंजेस और लिमिटेशंस देखे. अब हम देखते हैं कि अभी तक एआई को कितने लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है. सो राइट नाउ ग्लोबली 30 to 40% content writers are using AI for content. So I fall in this category only, 30 to 40%, because I believe that tool can help us, this AI can help us to boost our productivity so good. And I think students को भी ये चीज अडाप्ट करनी चाहिए. Adaptability is one of the most important skills for a writer or for any student or any employee. कि कोई भी चीज नहीं आती है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो उसको सीखना और उसको एक्सप्लोर करना कि ठीक है ये कैसे मेरे काम को बेनिफिट कर सकता है, या ठीक है मैं कैसे इससे अपना काम बेटर कर सकती हूँ, कैसे मैं बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में बहुत क्वालिटी वर्क दे सकती हूँ. सो एआई इज समथिंग दैट कैन मेक दिस पॉसिबल. फॉर मी एआई वाज वेरी हेल्पफुल एंड नहीं, एआई ने मुझे रिप्लेस नहीं किया. तो दिस इज कंप्लीट मिथ. तो आई थिंक ये जो 30 to 40% ग्राफ है, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज दिस परसेंटेज by at least 20-30%. मैं आई वांट सी दैट टाइम जब सब एआई का यूज करें एंड सब उसको एक्चुअली अपने काम में यूज करें, एंड प्रोडक्टिविटी से बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकती है. फॉर मी एआई वाज वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट माय जर्नी. एंड आई थिंक मैंने जितना भी अभी काम किया, तो मुझे अपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में एक्सपीरियंस आई थिंक मैं बोलूंगी कि ज्यादा एक्सपीरियंस है. बिकॉज आई हैव वर्क as a content writer, as a journalist, as a technical writer, copywriter, as you mentioned before in the starting. So Yes. मैं पूरा क्रेडिट एआई को दूंगी. जो चीजें मैंने कुछ अभी अपने लास्ट करियर के सालों में सीखी है, अगर एआई नहीं होता तो आई थिंक मुझे ये सीखने में और 4-5 साल लग जाते. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. एआई ने मेरे लर्निंग को भी बहुत ज्यादा बूस्ट किया और मेरे काम को भी बहुत ज्यादा बूस्ट किया. तो ये आई थिंक एवरी स्टूडेंट कैन यूज दिस टूल. जरूरी नहीं है कि उनको कंटेंट राइटर ही बनना है तो वो एआई की हेल्प ले सकते हैं. एआई बहुत ज्यादा बड़ा, आई थिंक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत काफी ऑप्शंस है एआई में. एआई इज नॉट लिमिटेड जस्ट फॉर कंटेंट. तो हम लोग एआई को यूज कर सकते हैं किसी भी एरिया में बहुत जल्दी ग्रोथ कर. सो इन इजी वर्ड्स इफ आई वुड से, इफ वी वांट टू मिक्स क्वालिटी विद क्वांटिटी, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है काम का, कि कितनी जल्दी से जल्दी हम क्रिएटिव से क्रिएटिव, अच्छा से अच्छे क्वालिटी का काम दे सकते. सो जैसे मैंने अभी कंपैरिजन किया दोनों में, लिमिटेशन और दोनों की बेनिफिट्स. अगर हम एआई सीख लेते हैं और हम एआई पे अच्छी कमांड पा लेते हैं, तो उन दोनों का जो बेनिफिट्स है वो मर्ज होके एक दूसरे के जो लिमिटेशन है उसको कैंसिल कर देगा. राइट. एंड आई थिंक एक तो ये वाली चीज भी होती है कि व्हेन वी आर सेइंग यूज एआई, वी डोंट मीन कि वहां से कंटेंट निकाला एंड यू लाइक डायरेक्टली यूजिंग इट. No. यस, वी आर व्हाट आई थिंक वी वांट टू से, जब मुस्कान भी कह रही है कि एआई हैज हेल्प्ड हर, तो आई थिंक शी मीन्स कि शी इज यूजिंग एआई इन अ वे फॉर हर लर्निंग. कि जब आप mind, and we also got a question in the comment in the chat box, that how do you, what's the question, how do you deal with writer's block? So I think Muskan, आप इसी का continuation में you can answer the question, because आप writer हो and I know कि writers का ऐसा बहुत होता होगा
that you've got a timeline, deadline मिली हुई है, but कभी कभी your mind is stuck, कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, right? Exactly, ऐसा होता है. This is very normal with every human. कभी कभी हमारा दिमाग नहीं काम करता है जैसे वो कुछ 3 दिन 4 दिन पहले काम कर रहा था. कभी कभी किसी वीक हम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और नेक्स्ट वीक हमारी प्रोडक्टिविटी काफी अफेक्टेड हो जाती है कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से. कुछ कुछ भी हो सकता है. कभी कभी हमारा ब्रेन सेम वे में काम नहीं करता है. बहुत सारे रीजंस होते हैं, लैक ऑफ स्लीप या बहुत ज्यादा काम या ओवर स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो अब एआई के लिए आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि एआई यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हम वहां से कंटेंट बना के डाल रहे हैं. सो फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट रहेगा तो फिर उसकी जो लिमिटेशंस थी वो सेम हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी. क्वांटिटी तो होगी, क्वालिटी नहीं होगी. स्पीड तो होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी. काम तो टाइम पे हो जाएगा बट वो एफिशिएंसी नहीं होगी. हमारे डेडलाइंस तो मीट हो जाएंगे बट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं मीट होंगी. तो उसके साथ मिल के काम करना है, उसको एज अ रेफरेंस यूज करना है. हमारे ब्रेन को लिमिट नहीं करना है. एआई यूज करके हमारे ब्रेन की लिमिट्स को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, अनलिमिटेड बनाना है. एआई पे लिमिटेड नहीं हो जाना है. राइटर, अगर मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था ये बात कि अगर राइटर कहीं पे लिमिटेड हो गया, कहीं कहीं पे जाके उसको लगा कि दिस इज माय लिमिट, वहां से राइटर का दिमाग फिर राइटर जैसा काम करना बंद कर देगा. राइटर्स हैव नो लिमिट्स, दे कैन थिंक बियॉन्ड एवरीथिंग. तो एआई को लिमिट नहीं बनाना है. एआई को हमें एज अ बूस्टर यूज करना है. एक पुश चाहिए. जैसे कभी कभी मैं, अभी आपने क्वेश्चन किया कि कभी कभी मेरी डेडलाइंस अगर बहुत ज्यादा पास आ जाती है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं बहुत जल्दी काम खत्म कर पाऊँ. अब वहां पे एआई मेरी क्या हेल्प करेगा कि मुझे कोई आर्टिकल लिखना है, सपोज कि कुछ समथिंग टॉपिक है मेरे पास कि हाँ स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन हो रही है या एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम्स के बारे में मुझे कुछ आर्टिकल लिखना है और मेरा डेटा क्लियर ही नहीं है. मुझे, मेरा दिमाग इज नॉट वर्किंग लाइक इट वाज वर्किंग बिफोर. तो अब वहां पे एआई मेरी क्या हेल्प करेगा? मुझे जगह जगह पे जाके रिसर्च नहीं करना पड़ेगा. मैं एआई से हेल्प ले सकती हूँ रिसर्च में. मैं एआई से हेल्प ले सकती हूँ कि ठीक है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम परफॉर्मेंस क्या था. अब मुझे उसके लिए 50 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे. एआई का जो सबसे अपडेटेड वर्जन रहेगा एआई मुझे वो बता देगा. ठीक है, दैट इज समथिंग, बट इट हेल्प, बट दैट इज समथिंग वी कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली. Yes, हमें that's what. रिसर्च तो अपनी करनी ही पड़ेगी. Yes, that's what I काम, also wanted to add कि यस, ऐसा बहुत लोग करते हैं that AI ने कोई, especially लोग AI के नाम पे चैट जीपीटी बोलते हैं, so they नहीं नहीं, blindly दैट इज pick समथिंग out वी कैन नॉट numbers. ट्रस्ट ब्लाइंडली. Yes, that's what, like I think that's a very important point कि आपको यस, अपना खुद का रिसर्च करना बहुत जरूरी है अलग से. रिसर्च तो करना ही पड़ेगा. शॉर्टकट तो नहीं होता है बड़े काम के लिए. कोई, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर बीइंग सक्सेसफुल और बीइंग वेरी गुड एम्प्लॉय. कोई शॉर्टकट नहीं होता है उसका. वी हैव टू डू द हार्ड वर्क. वी हैव टू गो थ्रू द हार्ड वर्क एंड go through the and all the struggle we have to go through. मतलब there is no shortcut for being successful. बस ये है कि हाँ आपकी जर्नी को थोड़ा सा इजी बना सकता है एआई. आपके काम को, आपके जो अननेसेसरी एफर्ट्स जा रहे हैं उसको थोड़ा सा इजी कर सकता है एआई. उसको थोड़ा सा छोटा कर सकता है एआई. तो काफी अच्छे से हेल्प कर सकता है. वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट इट. एक्चुअली काफी सारे कोर्सेज होते हैं, काफी सारी चीजें होती है जो हम एआई सीखने के लिए कर सकते हैं. तो आई वुड, Muskan, उससे ही यस, related we also have a question. ओके, Student at the rate Bonnie underscore 77 has asked, I want to start copywriting, but I don't know how to start. So I think you can. all right. So I would suggest get your graduation done, uh, which is related to writing background, which is related to writing stream. You can pursue mass communication. You can pursue some, if you want to do your copywriting in some certain language like English or Hindi,
You can get a degree in a language also, literature also. So first of all, work on your communication and writing skills. Uske baad, you can get a lot of internships, a lot of training sessions. तो उसके लिए आप कनेक्ट हो सकते हो, आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, मैं भी मिल जाऊंगी आपको। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। तो आपको लिंक्डइन से बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। आप ऐसे ही कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। आज के टुडे दिस टाइम इज वेरी कॉम्पिटिटिव। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। That's fine. कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. सो आजकल टुडेज वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल और राइटिंग स्किल्स पे काम करो। आप जो लैंग्वेज में आप कॉपी राइटिंग करना चाहते हो, इट इज अगेन नॉट लिमिटेड टू इंग्लिश और हिंदी। यू कैन बी अ मराठी कॉपी राइटर ऑल्सो, यू कैन बी अ पंजाबी कॉपी राइटर ऑल्सो, यू कैन बी अ some South languages, Telugu, Tamil. You can choose any language you want. तो जब आप 2 3 4 लैंग्वेजेस भी कर सकते हो, दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग। आप जितने ज्यादा लैंग्वेजेस जानोगे, आपको उतना ज्यादा लिवरेज मिलेगा आगे जाके। तो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो या जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप पहले अपने कम्युनिकेशन को और अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। देन गेट अ डिग्री रिलेटेड टू योर स्ट्रीम राइटिंग, विच इज मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, literature degree, any writing degree you can take. Then you can go for internship or training session, जहाँ पे आपको एक internship is something you get a time to explore your decision. जैसे मैंने डिसीजन तो ले लिया कि मुझे कॉपीराइटर बनना है, बट व्हाट इफ आई एम नॉट able to perform well, or maybe I'm not liking this stream. So internship give you that time, that opportunity, that one chance that you can explore yourself कि हाँ ठीक है, तुम आ तो गए वर्किंग इंडस्ट्री में, बट तुम कैसे, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, इस इंडस्ट्री में तुम्हें एक्चुअली में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, या सिर्फ तुमने सुना 4 लोगों से या तुमने कहीं पढ़ा तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हाँ चलो मैं भी ये करूँ। इंटर्नशिप में आप एक्चुअली खुद को एक्सप्लोर करोगे, फिर आपको समझ में आएगा ठीक है, एम आई एक्चुअली मेड फॉर कॉपी राइटिंग, और डू आई वांट टू डू समथिंग एल्स, या मैं टेक्निकल राइटिंग करना चाहता हूँ, या मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। तो आप इंटर्नशिप ट्राई करो कि आप एक इंटर्नशिप करो एक अच्छी वेल नोन कंपनी से। तो वहां पे आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपको अच्छे सीनियर्स मिलेंगे सीखने के लिए। तो वहां पे आप एक बार श्योर हो जाओगे, वहां पे आप अपनी जर्नी को समझ लोगे, देन यू कैन गो फॉर अ फुल टाइम जॉब एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। Yes. Thank you, Muskan. I would also like to add one more thing that Yes, it's not necessary कि अगर मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत लोगों को बहुत बाद में रियलाइज होता है that they want to try out writing, या उनका पैशन था राइटिंग बट वो किसी और फील्ड में घुस जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको पता हो पहले से। इन दैट केस नॉट नेसेसरी कि आपने कोई पर्टिकुलर डिग्री करी होगी तभी आप राइटर बन सकते हो। yes, इट्स exactly. इट्स अप टू यू। अगर आपने कोई और मतलब अगर आपने साइकोलॉजी किया है, आपने सोशियोलॉजी किया है, आपने कोई भी किया है, कोर्स किया है, यू कैन ऑलवेज टेक अप अ फ्री कोर्स। आप कोर्सेज से सीख लो, आजकल तो इतने सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, राइट मुस्कान? Yes, yes. मतलब आप कंटेंट राइटिंग, मतलब कंटेंट राइटिंग मैंने बोला था ना कि बहुत अनलिमिटेड स्ट्रीम है। तो आपको हमेशा कोई ना कोई टॉपिक आपसे रिलेटेड मिल जाएगा। तो इवन आपने साइकोलॉजी की है, इवन आपने टेक्नोलॉजी में कुछ किया है, या फिर आपने किसी और एरिया में या डिजाइनिंग में कुछ किया है, हमेशा आप उस चीज के लिए बात कर सकते हो। तो यू हैव ऑल द फ्रीडम टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक इन कंटेंट राइटिंग। तो ऐसे कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही सर्टेन डिग्री ही करनी है कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर, या कंटेंट राइटर में जो भी आते हैं रोल्स उसके लिए। ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको ये सर्टेन डिग्री, ये सर्टेन ग्रेजुएशन या सर्टेन मास्टर्स डिग्री ही करनी है, पर्टिकुलर यही डिग्री करनी है। You can be from any background. When I say content writing is unlimited and unlimited industry, then believe me, it is actually. So it does not limit you from anything. You can come from any background you want, and you can be a very successful content writer if you have that creativity and that expertise in yourself. Right. Okay. So Muskan, there was one more question.
and the question was that it's a sort of funny question because I'll be asking that to you. So a student asked, can you really make a full-time career as a writer? I think we have an example speaking to you right now, a full-time Exactly. writer, and I think she will be doing it, as a full-time career, and she has taken it up. So Muskan would be able to answer that. I think even without saying anything, you have answered that question. Yes, so I think this is my third job as content writer. So I think this area has a lot of opportunity. Plus, अभी मैंने बोला कि competition तो है market. You just have to get that unique quality. You just have to be dedicated, as dedicated you can be. You cannot, any area is not easy to achieve. Any area, not just content writing, any stream is not easy to achieve. If you have that dedication, and if you are willing to put your all efforts in this role, then definitely this role is an amazing um, opportunity for people, and making it as a career, full time career. I am a full time content writer, copywriter. I have um, three. I have experience of working with three companies before, and I can clearly say that this is a uh, playground for creative people. You get to play with your ideas. You get to like open your wings and be as creative as you want. This area gives you all freedom. It gives you the freedom to be as creative and as uh, what we say, uh, free you want to be. Not free कि मतलब काम नहीं करना है, ऐसे free नहीं, obviously, but Right. आप free हो अपने ideas को जिस way में convey करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो. Right. And I think writers का एक ये बहुत ही important value है कि writers को बेसिकली पोर्ट्रे करना होता है. मतलब हम बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं. कोई एक बिजनेस होता है, उनका एक मोटो होता है, उनको कुछ चीजें हैं जो उनको बताना चाहते हैं ऑडियंस को. आई थिंक बिना एक राइटर के, बीट कंटेंट राइटर, बीट कॉपी राइटर, यू कैन नॉट पोर्ट्रे योर मैसेज इन अ वे कि ऑडियंस को समझ में आए एंड दे रिलेट टू इट. राइट. तो उस वे से कम्युनिकेट करना, जैसे मुस्कान ऑल्सो शेयर्ड स्किल्स में कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक वो Yes, चीज यहाँ पे आ जाएगी. So I think that is very important. And I think no, yeah, you continue. yeah. So I think almost every company has content writers. No company can go without talking to their audience. So content writers are the link जो audience और company को जोड़ते हैं. So this link is as important as being some other uh, person in the company. So this is a very good opportunity. Right. Muskan, can we move to the next slide? So I think Yes. that's our time. We can wrap up the session. Yes. So so as we close the session today, I want to thank you for sharing your experience and your journey with our audience today. And I hope we have covered everything that the students wanted to know. But if you still have any more questions related to your career that you need to ask, or anything related to even this topic, being a copywriter, being a content writer, anything, you can simply, like, you can see a QR code on your screen. You can scan that and it will take you to our web app. There you will be able to see an ask me anything section, where you can get answers directly from our expert counselors. So you can just go ahead and explore if you have any questions. And don't forget to hit that subscribe button below to stay updated. We do these career classes, weekly career classes, every Saturday at 4 p.m. So don't miss that, and have a fantastic day. We look forward to seeing you next Saturday at 4 p.m. Thank you, Muskan. Thank you so much, Aditi. Thank you. This was a very good live session, and I hope मैं बहुत सारे लोगों को motivate करूँ. Definitely, I think we have done मतलब हमने काफी एक ऐसा मेजर सॉर्ट ऑफ टॉपिक
पिक किया था। Yes, I hope लोगों के doubts clear हो गए हो basic, and I hope लोग AI से डरना बंद करें and AI को सीखना शुरू करें. राइट. Yes. ठीक है, Aditi, thank you so much.